تلنگانہ کی مختلف مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے صدر تحریک مسلم شبان مشتاق ملک کی قیادت میں تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کی۔ وفد نے بلدیہ کی جانب سے شہید کردہ مسجد یا خانہ عنبر پیٹ کی اراضی پر نماز کی ادائیگی کی اجازت دینے کی اپیل کی۔ اس دوران وزیر داخلہ کو ایک میمورنڈم بھی دیا گیا۔ اس وفد میں مختلف مسلم تنظیموں کے جملہ 40 ارکان موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مشتاق ملک نے کہا کہ ہم فلائی اوور کی تعمیر کے مخالف نہیں ہیں، ہم مسجد یا خانہ کی بھی تعمیر چاہتے ہیں جسے GHMC کی جانب سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اپنے میمورنڈم میں گزارش کی ہے کہ وہاں مسجد بہرحال جب بھی حکومت بنانا چاہے بنائے، ہم کو صرف نماز پڑھنے کی اجازت دے، اور مسلمان وہاں نماز پڑھنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وہاں کسی کا کوئی کلیم وہاں پر نہیں ہے۔ مسجد درج اوقاف ہے، رجسٹرڈ ہے، مسجد کا سروے بھی ہے، گزٹ بھی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ ہوم منسٹر نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے لیے چیف منسٹر سے بات کرنا بہت ضروری ہے، اور یقیناً جو ہے چیف منسٹر اس مسئلے میں جو ہے بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں سے زیادہ جو ہے اس مسئلے میں پریشان ہیں، حساس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو۔ اور یہ مسجد کا ٹائٹل بالکل کلیئر ہے، درج اوقاف ہے، اور جو ہے اس کا مسجد ہونا حکومت کو، وقف بورڈ کو اور تمام اداروں کو تسلیم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا حق بنتا ہے ہر اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، ملکیتی اعتبار سے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جائے اور اس کو نمازوں سے آباد کیا جائے۔ ڈیجیٹل انڈیا کے تحت تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں پہلی مرتبہ سرکاری اردو ویب سائٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ضلع کلکٹر رونالڈ روز کے ہاتھوں اردو ویب سائٹ کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس ویب سائٹ میں ضلع کے اہم مقامات، تفریحی مقامات، مقدس مقامات کے علاوہ سرکاری اسکیمات کی تفصیلات موجود ہوگی۔ ضلع کلکٹر نے کہا کہ ضلع محبوب نگر میں اردو جاننے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اردو داں افراد تک حکومت کی فلاحی اسکیمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے مقصد سے اردو ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے قابل تیلگو اور انگریزی میں حکومت کی اسکیمات کی تفصیل فراہم کی جاتی تھی۔ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వెబ్సైట్లో మొదటిసారిగా ఉర్దూ వెర్షన్ ప్రారంభం చేయడం జరిగింది। ఇంతకుముందు తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ వెర్షన్స్ మనకు ఉండేది। ఇది స్వాస్ నెట్వర్క్ ద్వారా NIC వాళ్ళు నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్స్ వారు ఏర్పాటు చేసిన వెబ్సైటు। ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్ వెబ్సైట్ కూడా ఒకే రకంగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసినవి। అప్పుడు కూడా మన జిల్లాలోనే మనం మొట్టమొదటిసారిగా వెబ్సైట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది। దానికోసం మనకు డిజిటల్ ఇండియా అవార్డు కూడా మన జిల్లాకు రావడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఈ ఉర్దూ వెర్షన్ అన్నది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఫస్ట్ మనమే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము। ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉర్దూ చదివే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మన ప్రభుత్వ పథకాలు అందాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఉర్దూ వెర్షన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సో మా NIC వాళ్ళు, మా ఉర్దూ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫీసరు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా శ్రమపడి దీన్ని వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది। మన మహబూబ్ నగర్ ప్రజలందరం కూడా దీన్ని వినియోగించుకుంటారని అనుకుంటున్నాం। BJP की तलबा तंजीम ABVP के कारकुनों ने प्राइवेट स्कूल्स इंतजामिया के खिलाफ मनमानी फीस वसूल करने का इल्जाम लगाया और प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से वसूली की जाने वाली फीस पर कंट्रोल करने की मांग की। तेलंगाना हुकूमत पर तालीम को तिजारत बनाने और कारपोरेट इदारों की हौसला अफजाई करने का भी इल्जाम लगाया। The education has become a mafia today in Hyderabad, wherein the middle class and lower middle class parents cannot afford to join their children in these schools, and they have taking loan from various people and paying the fees, and they have been taking fees as a tuition fee, maintenance fee, transport fee, and even the uniforms has to be purchased from the school, transport, and they have been charging in various ways and putting burden on the parents and students are facing a lot of pressure as well as the parents. So we are fighting on this mafia, school education mafia, from past 1 month, and we have done roundtable conference, then we have done dharnas at the schools, and we have given memorandum to the education commissionerate, and then we have even get out that there is no response from the government as well as the school owners. So we definitely want them to bring down the fees so that in Hyderabad we see that even normal people can go to the schools and study. Our fight is going to go on till they bring down the fee structure. We want them to categorize it to A, B, C, wherein depending on the facilities they provide, we will be asking them to charge from 20,000 to maximum 40,000, not more than that.
डिग्री कॉलेजों में पीजी सेंटर्स की बर्खास्तगी से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले के खिलाफ तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। PDSU, AISF, SFI व दीगर तंजीमों ने इससे ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने रैली निकाली और नामपल्ली में वाक़े विद्या भवन का घेराव करने की कोशिश की। इस मौके पर तलबा तंजीमों के लीडरों ने विद्या भवन में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करते हुए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले महबूब नगर के दीनी मदारिस के तलबा को महबूब नगर रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मदरसा इंतजामिया ने इन बच्चों की तफसीलात से अहदेदारों को वाकिफ करवाया। आला अहदेदार दस्तावेजात को मानने से इनकार करते हुए बच्चों को ICDS मुंतकिल कर दिया है, जिस पर मदरसे के मुंतजिम मौलाना मोहसिन पाशा कादरी ने तशवीश का इजहार किया। मकामी लीडरों ने एक साजिश के तहत मुस्लिम बच्चों को हिरासत में लेने का पुलिस पर इल्जाम आयद किया। वाज़ेह के रमज़ान की तातीलात के बाद कल बिहार और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 20 से ज़ायद मदरसे के तलबा तालीम हासिल करने की गर्ज से अपने अपने मदारिस को आ रहे थे। ट्रेन में इन बच्चों को देखकर किसी ने चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर पर कॉल किया था, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने इन बच्चों को हिरासत में लिया है। आए दिन शहर हैदराबाद में ट्रैफिक बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया गया है। GHMC और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिग्नल लाइटिंग सिस्टम को मुतारफ किया गया है। पहली मरतबा इस सिस्टम को हैदराबाद के इलाके KBR पार्क में तजुर्बाती तौर पर नस्ब किया गया है। इस सिस्टम के तहत हर सिग्नल के पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग से कबल LED स्टॉप लाइन लगाई गई है, जिसमें 3 मुख्तलिफ रंगों की रोशनी होगी ताकि गाड़ी चलाने वाले इस लाइन के अंदर खड़े रहें, इसको क्रॉस न करें। इसके जरिए हादसात की रोकथाम होगी। खवातीन और बच्चों पर हो रहे इस्मत रेज़ी के वाक़यात के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता कई दिनों से एहतजाज जारी है। इस्मत रेज़ी के मुलज़मीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए संगारेड्डी में स्कूली तालिबात ने रैली निकाली। रैली में सैकड़ों तलबा शरीक थे। प्ले कार्ड थामे स्कूली तालिबात ने मुजरिमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस रैली में शहर के मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात मौजूद थीं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की खातून कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। रियासत में लड़कियों और खवातीन पर बढ़ते हुए मजालिम और तशद्दुद की मजम्मत की। खवातीन ने सिकंदराबाद में मुजस्समा महात्मा गांधी पर खामोश एहतजाज किया। खवातीन पर जुल्म ज्यादती करने वालों को इबरतनाक सजा देने की मांग की। हैदराबाद के फिल्म नगर रोड पर D-Mart शोरूम के करीब शेखपेट OU फ्लाईओवर पर ग्रिड्स को नस्ब करने के दौरान ग्रीन अलर्ट किया। इस हादसे में क्रेन ऑपरेटर हलाक हो गया है। मसरूफ सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई, ताहम ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार वहां पहुंचे और ट्रैफिक को हटाया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के मुताबिक क्रेन के ऑपरेटर ने जब ये देखा कि इसका तवाज़ुन खो गया है तो वो फौरी ड्राइवर के कैबिन से जान बचाने के लिए कूद पड़ा, ताहम क्रेन उसी पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। GHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने मकाम वाक़या का मुआयना किया। कमिश्नर GHMC दाना किशोर ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी गई है कि वो ड्राइवर के खानदान को मुआवजा अदा करे। उन्होंने ड्राइवर के गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। हैदराबाद सीलिंग के 34वें वीक का तेलंगाना व AP के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आगाज किया। कश्ती रानी के मुकाबले हुसैन सागर में 2 जुलाई से 7 जुलाई तक होंगे। इन मुकाबलों में मुल्क भर के कश्तीरां की शिरकत मुतवक्के है। ईरानी चाय बनाने में कमाल हासिल करने के बाद हैदराबाद के मारूफ चायखाने कैफे नीलोफर के मालिक बाबू राव ने तेलंगाना के देसी तरीके से बनने वाली चाय को फरोग देने में लगे हैं। उनके इस तजुर्बे को भी ईरानी चाय की ही तरह मकबूलियत हासिल हो रही है। पेश है तफसीलात। शुमाली तेलंगाना के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखने वाले बाबू राव
जब रोजी रोटी हासिल करने हैदराबाद आए तो उन्होंने इब्तिदा नीलोफर अस्पताल के करीब वाक़या कैफे नीलोफर में टेबल साफ करने की नौकरी से की। इनकी सख्त मेहनत की वजह से 2 साल बाद इस कैफे के मालिक ने इन्हें चाय खाने को किराए पर चलाने के लिए दे दिया। बाद में बाबू राव ने इस चाय खाने को खरीद लिया। इसी दौरान बाबू राव ने रवायती ईरानी चाय और मकबूल आम उस्मानिया बिस्किट बनाने में महारत हासिल कर ली और कैफे नीलोफर को हैदराबाद में ईरानी चाय के सबसे मकबूल मकामात में से एक बना दिया। 76 में वहाँ काम करके पहले वेटिंग पे काम करता था वही होटल में, फिर उसके बाद सुपरवाइजर बना, फिर काउंटर में काम करा, उसके बाद होटल कॉन्टैक्ट पे लिया, फिर चाय बनाना सीख लिया। उसके बाद यह नया कॉन्सेप्ट हैदराबाद में एसी होटल यहाँ चालू करा। पहले क्वालिटी अच्छी देना, वही रेट में देना और कस्टमर को अपना देना, उसके बाद आदत लगाना, उसके बाद हमारे को रेट हमारा चॉइस मिल जाता। तो जो साफ दे रहे, अपने को मुतमईन होना कि मैं साफ कस्टमर को दे रहा हूँ, तब अल्लाह ताला हमको भी साथ देता है। पहले ये बात है, तो मेरे दिल को पहले साफ कर देना, मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, मैं जो चीज़ खाता हूँ वो चीज़ देना, मेरे को जो पसंद है वो देना बस। ईरानी चाय बनाने में कमाल हासिल करने के बाद बाबू राव ने नीलोफर कैफे के करीब ही जदीद अंदाज में इसकी एक और शाख का आगाज किया। लेकिन इस मकाम पर ईरानी चाय के बजाय दक्कन के घरों में बनाई जाने वाली चाय की तरह चाय बनाने का तजुर्बा किया। ताज़ा दूध और मखसूस चाय की पत्ती से बनी इस चाय को भी चाय के शायकीन ने बेहद पसंद किया। अब यहाँ की अगर आप चाय अगर पी लेंगे तो हैदराबाद की कहीं भी नहीं पी सकते आप, ऐसी चाय है, एकदम बहुत हटके है। आप The tea is really very good taste. So we used to come here weekly 3 or 4 times, especially to have the tea here only. And the snacks also very good, very tasty. So we and our people are 5-6 our people are there. We used to come by metro and have it and we will go back. सुबह की चाय, शाम की चाय, रात की चाय कंपलसरी। खास बात तो कुछ भी नहीं, बट चाय अच्छी है वो हिसाब से आते। कुछ आदत लगे क्या? आदत लग गई। सबको दारू का नशा लगता है, अपन को चाय का नशा लग गया। एरिया ही क्या, बहुत लोग दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, जैसे बंजारा हिल्स हो गया, जुबली हिल्स है, बहुत सारे बड़े सिटीज़ से भी लोग यहाँ पे आके बाकायदा जाने के टाइम पे, आने के टाइम पे, एनी टाइम व्हेनेवर दे स्टार्ट देयर डे और दे एंड देयर डे, दे विल स्टार्ट विद द टी ओनली। हैदराबादी चाय फेमस है। मैं तकरीबन नहीं बोले तो भी मैं 19-20 साल से चाय पीता हूँ, बाबू राव साहब की चाहिए। टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो टूरिस्ट लोग भी वहाँ के हमारे यहाँ के ड्राइवर लोग जो रहते हैं उनका ख़ास तौर से लेकर आके बाबू राव साहब की चाय पिला कर ही लेके जाते हैं, और एक चाय पीने के बदले लोग 2-2, 3-3 चाय पी के जाते हैं। पहले ईरानी और फिर घर की चाय में कमाल हासिल करने के बाद बाबू राव ने चाय के साथ अपनी मुहिमजुई को जारी रखा। वो हैदराबाद के इलाका बंजारा हिल्स में एक ऐसे जदीद चाय खाने के क़याम में लगे हैं जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए जाने वाले तरीकों की मशहूर चाय की अक़साम को पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती के सेक्रेटेरिएट में हाउसिंग पर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग में शहरी देही इलाकों में घरों की तामीर, गुज़श्ता हुकूमत में तामीर किए गए मकानात में बदनवानियों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में शेरमाल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। इस मीटिंग में वज़रा रंगनाथ राजू, बी सत्यनारायण और दीगर मौजूद थे। अमरीकी काउंसलर जनरल कैथरीन ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। हैदराबाद में कैथरीन ने जगन मोहन रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला बनने के बाद कैथरीन की ये पहली मुलाकात है। ये भी खबर है कि मुलाकात के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने अमरीका में मुकीम आंध्र प्रदेश के तलबा और मुलाजमीन की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बातचीत की। इसके अलावा वीज़ा पॉलिसी और सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत ने एक और अहम फैसला लिया है। उस वक्त के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त पर अमरावती सिंगापुर के दरमियान गुज़श्ता साल दिसंबर में फ़ज़ाई सर्विस का आगाज हुआ था। जून तक एक मुआहदे के तहत सर्विस शुरू की गई थी। मौजूदा वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इस मुआहदे को मनसूख कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में इंडिगो सर्विस के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसे मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है।
हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 3 माहिरीन को आईटी के मुशीर के तौर पर मुंतखब कर लिया है। नए मुशीरों के इंतखाब से मुतल्लिक मकतूब भी जारी किया गया। जे विद्यासागर रेड्डी और श्रीनाथ देवी रेड्डी को आईटी टेक्निकल मुशीर, जबकि राजशेखर रेड्डी को सरमायादाराना पॉलिसी के मुशीर के तौर पर मुंतखब किया गया। इस सिलसिले में महकमे आईटी के चीफ सेक्रेटरी ने अहकामात जारी कर दिए। रियासत में नए आईटी तरीक़ेकार को रूबामल लाने के अलावा आईटी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत ने इन माहिरीन का इंतखाब अमल में लाया है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और सदर तेलुगुदेशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू की सिक्योरिटी कम करने के मामले पर एपी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने अर्जी समाअत के लिए कबूल कर ली है। इस मामले पर समाअत 9 जुलाई को होगी। वाज़ेह है कि तेलुगुदेशम सदर चंद्रबाबू नायडू और उनके अफराद खानदान की सिक्योरिटी में जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने कमी की है। तेलुगुदेशम ने जगन हुकूमत के इक़दाम को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में तेलुगुदेशम के कारकुनों पर बेशतर मकामात पर हुए हमलों के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अप्रैल में मुनक्किदा इंतखाबात के बाद कुप्पम असेंबली हल्के के रामाकुप्पम में मुनक्किदा पहले जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी के 6 कारकुनों को हलाक किया गया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में ऐसे हमलों के लिए कोई जगह नहीं है और हर पार्टी को चाहिए कि दीगर जमातों का एहतराम करे। हुकूमत का ये फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखे। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब कभी उनकी पार्टी का कोई भी कारकुन किसी मसले का सामना करेगा तो वो उसके साथ होंगे। जरूरत पड़ने पर वो पार्टी कारकुनों में भरोसा पैदा करने के लिए 2-3 दिन क़याम भी करेंगे। किसी भी कारकुन को हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं है। ఇది నా జీవితమే కాదు, నాకు ఎన్ని జన్మలుంటే అన్ని జన్మలు మీకు రుణపడి ఉంటానని మరొకసారి మీ అందరికీ చెప్తున్నాను। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम ए सुरेश ने करनूल का दौरा किया। वजीर बराए तालीम के पहले दौरे करनूल पर उनका इस्तकबाल किया गया। करनूल रुकन असम्बली, जिला कलेक्टर, एसपी और हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ तलबा और असातिज़ा तंजीम ने वज़ीर तालीम को अपने मसाइल से हल करने के लिए याददाश्त पेश की। There are many representations given to the various associations to the Honorable Education Minister. So आगे दिने में ये प्रॉब्लम्स ये सुनकर लिए ये एश्योरेंस को सही तो प्रॉब्लम्स दिए को वो हमें भी सोचते हैं वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के। मैं भी टीचर एमएलसी से मिनिस्टर के पास ऑनरेबल सीएम के पास भी मैं रिप्रेजेंटेशन करको वो प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए मैं भी काम करता हूँ। उनको एक लेटर प्रेजेंट किया गया है फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए। जो विजुअली हैंडीकैप्स में पोस्ट है उसको आर्टो में कन्वर्ट करके इंटरचेंज करके हम लोग देने के लिए हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर साहब से गुजारिश किया है। तो सार से हमें ये उम्मीद है कि सार हमारे साथ इंसाफ करें। 3 DSO से उसको कैरी फॉरवर्ड होते हुआ आया है। हम सार से गुजारिश करते हैं इस साल इंटरचेंज करके ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप को दिया जाए। उन्होंने हमें ये भरोसा दिया कि GOMS नंबर 99 जो 2013 में राइज हुआ है इसके तहत विजुअली हैंडीकैप के पोस्ट को जो है आर्थो में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। करनूल में हुकूमत आंध्र प्रदेश के अहकामात के मुताबिक स्पंदना प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फकीरप्पा ने आवाम से शिकायत कबूल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक स्पंदना प्रोग्राम का आगाज किया गया है ताकि आवाम के मसाइल को जल्द अज जल्द हल कर लिया जा सके। स्पंदनम कार्यक्रम बोल के एक ग्रीवेंस डे प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें डिफरेंस ये है, इससे पहले भी ये हर वीक यहीं पे होता था, बट दिस टाइम वी आर फिक्सिंग द टाइम लिमिट फॉर एवरी पिटीशन। पब्लिक जो भी एसपी साहब को नहीं पुलिस स्टेशन डीएसपी साहब को मिलने के लिए आते हैं, कंप्लेंट के अनुसार कंप्लेंट का जो कंटेंट्स क्या है इसमें उसका सीवियरिटी क्या है वो देख के उसको एक टाइम लिमिट हम फिक्स कर रहे हैं। बोले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते, मान लो एक ही दिन में एक पूरे सिंपल का मैटर है तो 1 दिन 2 दिन ऐसे टाइम लिमिट फिक्स करके उसी रिसेप्शन में हम लिख के दे रहे हैं। जो भी कंप्लेंट देते हैं उसको एक एक्नॉलेजमेंट में हम लिख के दे रहे हैं। उसके अनुसार पुलिस स्टेशन में जो भी परिष्कार मिलेगा उन लोगों के लिए वो ऐसा करना।
کرنول کے عثمانیہ کالج میں UGC کے زیر اہتمام انڈکشن پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی اور RJD کڑپا زون نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلبہ کو تعلیم کی اہمیت سے واقف کرایا گیا۔ اس تقریب میں نومنتخب رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان کو کالج مینجمنٹ کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ عثمانیہ کالج میں UGC دوارا اسپانسرڈ کیا ہوا پروگرام اسٹوڈنٹ انڈکشن پروگرام چلا رہے ہیں۔ یہ پروگرام فرسٹ ایئر BA اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنے اسکول سے ہائر ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں۔ جو بچے بہت فریش ہیں، ینگ ہیں، ایکسپیرینس نہیں ہے کالج کے بارے میں، یہ 3 دن کا پروگرام ہے جو ہم بچوں کو کالج کے فیسلٹیز، اسٹاف اور پورے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم لوگ انڈکٹ کرتے ہیں، ان کو اس میں انٹروڈکشن دیتے ہیں، اور جو بھی فیسلٹیز ہیں ہمارے کالج کے اور جو سیمسٹر پروگرامز ہم چلاتے ہیں، ایکیڈمک، اسپورٹس، NCC، NSS اور بہت سارے جو کلبز ہیں، ایکو کلب، ریڈ ریبن کلب، یہ سب کے بارے میں بچوں کو ہم اطلاع دیتے ہیں۔ کرنول رکن اسمبلی حفیظ خان نے سمر سٹوریج ٹینک کا جائزہ لیا۔ اس اجلاس میں بلدیہ حکام بھی شریک رہے۔ حفیظ خان نے کہا کہ کرنول کے عوام کو پینے کے پانی کے مسائل سے نجات دلائی جائے گی اور کرنول شہر میں واقع سینیٹیشن مسئلے کو بھی حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کرنول کو 3 TMC پانی دینے پر وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ کرنول کو دیتے بول کر بات دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو پرماننٹ سولوشن چاہ رہے تھے وہاں سے بھی ان سے پاس سے بھی ایشورنس آیا ہے، تو آنے والے دنوں میں ہمارے پانی کا پرابلم جو ہے سالو ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو اسٹیپس لینا ہے وہ لے کر جلد سے جلد ہم لوگ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرنول کے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر خطرہ پانی کا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ کہیں پر بھی ویسٹ مت کریے۔ اگر کہیں پر کوئی میونسپل ٹیپس ہیں جہاں پر واٹر ویسٹ ہو رہا ہے تو ہمارے نظر پہ اس پہ لائیے آپ، ہم لوگ اس کو جو ہے ٹیپ لگانے کی کوشش کریں گے۔ ویسٹیج آف واٹر کو جو ہے جہاں تک ہو سکے وہاں تک کم کرنے کی کوشش کریں، اور جو پانی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ پانی کو صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں، کیونکہ پانی کی بہت بڑی قلت ہے۔ پانی کو کرشنا ضلع کے گناورم منڈل میں واقع نارائنا کالج میں ایک طالب علم کی موت ہوگی۔ ہرش وردھن ریڈی نامی طالب علم عمارت سے گر کر شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسپتال منتقل کرنے کے دوران راستے میں ہی طالب علم نے دم توڑ دیا۔ انتظامیہ کی اطلاع کے مطابق طالب علم کو مرگی کی بیماری تھی۔ جب وہ اسکول میں تھا اس وقت دورے پڑنا شروع ہو گئے اور نیچے گر گیا۔